رحمہ مسجد کے زیر نگرانی جو رحمہ فاؤنڈیشن چلایا جاتا ہے، جس کے تحت کئی سماجی اور انسانی کام کیے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے ایک پریس کانفرنس بلائی ہے. کیا سبجیکٹ ہے، کیا موضوع ہے پریس کانفرنس کا؟ رحمہ مسجد اور رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق بھائی، اس سے پہلے بھی آپ رحمہ مسجد اور رحمہ بلاگ سے خبروں کو پھیلاتے رہے ہیں. مسجد کا وجود تو الحمدللہ 1999 سے ہے، اور ایک وسیع فکر کے ساتھ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی. تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مسجد اور مدرسے کو، جس میں جو ہے مکتب کے ساتھ ساتھ میں حفظ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. اور حفظ کا ایک الگ کانسیپٹ تھا ہمارے یہاں پہ. حفظ کی پڑھائی تو ماشاءاللہ پورے دنیا میں ہوتی ہے، پورے ملک میں ہوتی ہے، لیکن جو اسکولی بچے ہیں اس وقت ہمارے یہاں شہر میں کوئی اس کا نظم نہیں تھا. بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اسکول کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھانا چاہتے تھے، کالج بھی پڑھانا چاہتے تھے، اور ساتھ میں حافظ بھی بنانا چاہتے تھے کہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے. تو الحمدللہ یہ بنیاد ہمارے یہاں ڈالی گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب تک سینکڑوں بچے حافظ ہو چکے ہیں. اور اپنی اسکول کے ساتھ میں، اپنے کالج کے ساتھ میں بعض بچے جو ہیں انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، ایک بچہ پائلٹ ہے الحمدللہ، اور سب حافظ ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچے جو پڑھنے والے ہیں اس وقت میں وہ سارے کے سارے محلے کے اور شہر کے بچے ہیں. باہر سے کہیں سے دور سے نہیں لائے گئے ہیں، یعنی جہاں چراغ ہے وہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ ان فکروں کے ساتھ میں بنیاد ڈالی گئی تھی. وہ تو کام اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے. اب اس کے بعد جب پھر یہ ہوا کہ اسکول کے مدرسے کے ساتھ میں ہم کچھ ایسے کام کریں، رفاہی کام بھی کریں، ملی کام کریں، سماجی کام کریں، اور لوگوں کے بھلائی کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے. کیونکہ ہم نے جب بنیاد ڈالی تھی تو اور جتنے بھی ساتھی تھے سب کے ذہنوں میں صرف مسجد نہیں تھی. مسجد کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں. صرف تعلیم نہیں تھی کہ دینی تعلیم دے کر کے مسجد کو جیسے عام طور سے بند کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں تھا. بلکہ یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی استعداد کے مطابق کوشش کریں گے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا، ہم اپنی استعداد کے مطابق اس سب کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ان فکروں کو لے کر کے 2020 میں 1 مارچ 2020 ایک رحمہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO کی بنیاد ڈالی گئی. چونکہ مسجد اور مدرسے کے ٹرسٹ سے بہت سارے کام نہیں کیے جا سکتے، ہمارے ملک کے قوانین کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے شروع میں یہ کیا تھا کہ 100 غریبوں کو ہم لوگ روزانہ کھانا بنا کر کے دیا کرتے تھے، 100 لوگوں کو. اب اس کے بعد جیسے ہم نے یہ شروع کیا، کچھ دن کے بعد کووڈ آ گیا. ہم نے 2019 سے ہی کام شروع کر دیا تھا، اس کے بعد کووڈ آ گیا. تو اب کووڈ آ گیا تو پھر ہمارے پاس میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ہم نے اس میں جو ہے ایک چھوٹی سی کلینک شروع کی. BMS ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں، ڈاکٹر عبدالمتین صاحب. سارے لوگ فارغ ہو گئے تھے، پریشانی تھی کیا کیا جائے، تو اس میں ایک چھوٹی سی ہم نے کلینک شروع کی. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے رحمہ فاؤنڈیشن کی بنیاد جو پڑی ہے. اب آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے 100 لوگوں کا جو کھانا تھا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج 5واں سال ہے، وہ روزانہ بلا ناغہ، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، کوئی اور موقع ہو، ہم لوگ ہمیشہ دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے. پھر آگے چل کر کے اور مسائل لوگوں کے سمجھ میں آئے تو 300 لوگوں کو ہر مہینے راشن دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے فضل سے عام لوگوں کے جو ہے دعا ان کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو وہ کلینک تھی اس کو اور ہم نے مزید وسعت دے کر کے اس کو پالی کلینک میں تبدیل کیا، کیونکہ ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی تھی. اس وقت رحمہ فاؤنڈیشن کی نگرانی میں 4 پالی کلینک چل رہی ہے. ایک جہاں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دارالفلاح میں، دارالفلاح کی بلڈنگ نمبر 2 میں، یہ 3rd برانچ ہے. جی. ایک تو مسجد پہ ہی چلتی ہے، دوسری ہماری شمشاد نگر میں چلتی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تیسری راجیو بلڈنگ جو یہ قبرستان امرت نگر قبرستان ہے اس کے پاس میں وہاں ہے، وہ 4تھی برانچ ہے، اور یہ تیسری برانچ ہے. یہ 4 برانچیں الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں. اس کے ساتھ میں ہم اپنی وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق جتنی ہوتی ہے، کچھ بیواؤں کو ہر مہینہ جو ہے کچھ نہ کچھ نقد رقم کی شکل میں جیسے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ تو دواؤں کی شکل میں. اور یہ جو کلینک ہے یہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے پورا. ان میں 3 جو ہے ڈینٹل کے ساتھ میں ڈینٹل کلینک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے OPD ہے، IPD ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت ہی کم پیسوں میں، کم خرچ میں جو ہے ہمارے یہاں بہت ساری رپورٹس کرائی جاتی ہے. بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہے، پیتھولوجی کا ہے، اور شہر کے بہت ہی اچھے بہترین قسم کا جو لیب ہے یہ سے ہم لوگ کرواتے ہیں. کم سے اسی طرح لیب سے ٹائی اپ ہے رحمہ فاؤنڈیشن کا. جی. یہاں بلڈ کلیکشن یہاں ہوتا ہے اور رپورٹ وہاں سے بن کر کے آتی ہے. یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے بہت سارے کام ہو رہے ہیں.
इन्हीं कामों को लोगों के सामने पेश करने के लिए जी और शहर को बताने के लिए कि ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, रफ़ाही काम और कौम की भलाई और समाजी काम तो माशाल्लाह बहुत हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, हम तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जो यहाँ है वो ये है कि ये इदारे के साथ चल रहा है, दीनी इदारे के साथ साथ चल रहा है। मस्जिद से इसका निज़ाम चल रहा है, मदरसे से इसका निज़ाम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे इदारे NGO हैं जो अपने लेवल पे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको खूब जज़ाए खैर दे। लेकिन ये था कि ये मस्जिद से शुरू किया जाए, मदरसे से शुरू किया जाए और मस्जिदें बंद न कर दी जाएँ 4 वक्त 5 वक्त नमाज पढ़ाने के बाद। हाफिज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मस्जिद बंद मूवमेंट शुरू किया गया है पूरे इंडिया में, जी। जो एक तहरीक चल रही है, दरअसल में अगर मोगरा कौसा की हम बात करें तो रहमा फाउंडेशन ने रहमा मस्जिद से ये मस्जिद बंद मूवमेंट आज से 5 साल पहले शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, ये कहना ठीक रहेगा? ये बिल्कुल शुरू कर दिया था जी। और हम तो उस वक्त में हमें मालूम भी नहीं था। मस्जिद तो उनका बड़ा काम है और बहुत ही ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह, और इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। ये तो हमारी फिक्रें बहुत पहले से, असबाब न होने की वजह से, वसाइल न होने की वजह से। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे होते हैं उनके पास असबाब वसाइल नहीं होते। आम मुसलमानों के चंदों से, थोड़े थोड़े पैसों से चलते हैं। तो हमारे यहाँ मदरसे के खुद एक बहुत बड़ा खर्च, अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे में भी 500 बच्चे हैं और उसके साथ साथ में जो है 18 लोगों का स्टाफ है। उसके बावजूद भी अब अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह पर भरोसा करके शुरू किया गया। अल्लाह का एहसान है कि आज ये एक बड़ा बजट हो चुका है, वो भी अल्लाह ही पूरा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही लोगों को जो है बतलाने और समझाने के, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब हो, हमारा ये मकसद है। क्योंकि एक किनारे मस्जिद पड़ जाती है, हर आदमी आ भी नहीं पाता है, हर एक को, चूँकि ये इंसानियत की बुनियाद पर हो रहा है, किसी ख़ास फ़िक्र के लोगों के लिए, किसी ख़ास तबके के लिए, मसलक के लिए नहीं, बल्कि ये मज़हब भी इसमें कहीं आड़े नहीं आता जी। ये बिला किसी मसलक और मज़हब के तफरीक के ये काम हो रहा है। तो हमने ये कहा कि हर एक इसको जाने। 4 साल हो गया, 5वां साल ये शुरू हो चुका है, अल्लाह का एहसान है। तो हमने ये मित्तल ग्राउंड में 8 फरवरी को एक जलसा रखा हुआ है बड़ा, जिसमें हमारे अकाबिर उलमा हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी दामत बरकातुहुम, ये 2 बड़े अकाबिर उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और इनकी खिदमात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं। इनको बुला करके पूरे शहर के सामने काम रखना है और असलन ये तरगीब देना है कि देखो ये असल काम था हमारा, ये हमसे छूट गया है और इस काम को हमें करना चाहिए। इसलिए हम मर्दों को, मस्तूरात को, मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, पॉलिटिशियन को, नॉन पॉलिटिशियन, हर एक को हम दावत दे रहे हैं कि सब आएँ और मिलजुल करके ये प्रोग्राम किया जाए और देखा जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा मकसद है। और इसमें हमारे मदरसे से 20 हुफ़ाज़ किराम जो स्कूली तालिब इल्म हैं, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ जो हिफ्ज़ उन्होंने किया है, ऐसे 20 हुफ़ाज़ किराम हैं, उनकी दस्तारबंदी भी होगी इंशाअल्लाह। हज़रत रहमा फाउंडेशन की तरफ से जैसे रोज़ाना खाना जो बांटा जाता है, महीने के जो राशन के किट्स दिए जाते हैं, बेवाओं को जो नकद मदद दी जाती है, और ये 4 क्लिनिक आपके चल रहे हैं जिसमें पैथोलॉजी भी है, डेंटिस्ट भी है, OPD IPD की सारी सहूलियात आप फराहम करा रहे हैं। तो इसमें सभी के लिए ये सहूलियतें आपने शुरू की है या मखसूस इसमें कुछ रखा गया है, क्या है? नहीं, ये सभी के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये इंसानियत को सामने रख करके किया गया है। जैसे खाना है, कोई भी आता है उसमें ना आपको राशन कार्ड दिखाना है, ना कोई पहचान बतानी है, इंसान होना काफ़ी है, इंसान होना काफ़ी है। आप इंसान हैं, बस आप ज़रूरतमंद हैं, किसी को कुछ बताने के, नाम तक बताने की ज़रूरत नहीं। वो आए, मस्जिद के दरवाजे पे रखा रहता है, बेहतरीन पैक करके एक आदमी बैठा रहता है, वो हाथ में फ़ौरन खाना देता है। फैमिली है, उसकी फैमिली में 2, 5, 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हैं तो 10 का खाना ले जाना चाहता है तो ले जाए, वो कोई भी हो। कोई पहचान बताने, एड्रेस बताने की, नाम नंबर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरीके से जो राशन दिया जाता है, राशन में ज़रूरतमंद होना काफ़ी है। आप ज़रूरतमंद हैं, कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, किसी मज़हब से भी मानने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप जब कभी वहाँ तक़सीम होता है, आपने पहले दिखाया भी है, फिर कभी दिखाएं, वो पूरी लिस्ट है, किसी से आज तक पूछा ही नहीं गया। हर आदमी आता है और ज़रूरतमंद है वो लेकर के जाता है। इसी तरीके से जो हमारी क्लिनिक है, क्लिनिक में भी यही है। हम अलबत्ता इसमें क्लिनिक में ये करते हैं कि इतना हम थोड़ा सा लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जो अखराजात, नॉमिनल चार्जेस जो और जगहों पे लगते हैं बिला मुबालगा, उससे आधे से भी कम लेते हैं। ये इस तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं। की अपील लेने थे जी।
8 फरवरी को मित्तल मैदान में, जैसे कि हाफिज लुकमान साहब ने बताया, रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मस्जिद नबवी की तर्ज पर रहमा मस्जिद से जो रहमा फाउंडेशन काम कर रहा है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मुमरा कौसा के लोग जो है उसको समझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मित्तल ग्राउंड 8 फरवरी को आए, समझे। इसके लिए आप तमाम शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा इक़दाम है रहमा फाउंडेशन की तरफ से, और मकसद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, रफ़ाई काम कर रहे हैं, वो काम सारे लोग उसको पहचाने, अपनी मसाजिद से शुरू करें। और ये बहुत अहम काम है, यानी फ़राइज़ को अदा करने के बाद सबसे अहम काम ये है मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रहमा फाउंडेशन कर रहा है, और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मित्तल ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह आने वाले हैं, और इसमें मुक़र्ररीन के जो मौलाना हाफिज़ लुकमान साहब ने नाम दिया, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम दूर तक फैले, लोग उसको हमारे पास से रोड मॉडल उस तरफ लेके जाएँ, हम किस तरीके से काम करते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तंजीम पूरी काम कर रही है, इनके साथ पूरा साथ देगी, और इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देती रहेगी। और ये हम लोग आज नहीं 4-5 साल से मुस्तकिल ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। उम्मत का जो भी मसला हो, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये जो काम रहमा फाउंडेशन का बहुत ही मुहताज तारुफ नहीं है, और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के ज़रिए आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ, ताकि अपने अकाबिर की बात को हम सुनें और इंशाअल्लाह इस पर अमल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हज़रत लुकमान साहब को, तो उन्होंने ये काम चालू किया, और इससे ना कि हिंदू ना मुसलमान सभी भाई मिलके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तहिक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है कि मुस्तहिक तक उनको जो है राशन पहुँचना और उनको खाना पहुँचना वक्त पे, या मेडिसिन का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद का बहुत अच्छा इस्तेमाल हाफिज़ लुकमान साहब ने किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सबसे अपील करेंगे कि जो हो सके हम सब अपनी मसाजिद से इस काम को चालू करें, क्योंकि हमारा काम है खिदमत खल्क़ करना, जितनी भी मुस्तहिक की खिदमत हम कर सकते हैं। और मेरी एक और अपील है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है औरतों के लिए अवाम ने रखा है, हम लोगों ने, कि औरतों का बहुत मखसूस पर्दे का सारा इंतज़ाम है। मैं अपील करूंगा मेरी माओ बहनों से कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, और उनको इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और औरतों का मखसूस पर्दे का इंतज़ाम है, और जो वॉलंटियर हैं वो औरतें ही हैं, लेडीज़ हैं सब, तो ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।